Hello, am I audible? Yes, sir. Okay, thank you. Let us wait till we have 30 participants and then we will start our session. Rahil, rename yourself. Okay. See, can you see the AutoCAD screen? No, sir. Okay. Now, Yes, sir. okay. Yesterday we had seen one problem which was based on the triangular prism and triangular pyramid. So today we will move further. So we will add one more line into the triangle. So here we have three lines, isn't it? One, two, three, three lines. One more line we will add and it will form a square. So that problem we are going to discuss today. So draw the development of a lateral surface of a square prism having base as 30 mm and axis height 70 mm. So let us start solving it. Okay. So line of 30, 30, 30 and it's close. Okay. So this is what person A has drawn. Then the projections. Okay. Then base we have drawn at some distance and offset of 70. Okay. Then we will break this. Sorry. Okay. Now what is the initial data is given? So that data we have to do the dimensioning for that. And over here the axis is given as 70. Okay. Now we need to mark the axis. So for that thing we have to draw the diagonals of it, or we have to join the diagonals, isn't it? And from this intersection we can draw the axis. Okay. And these lines are not necessary, but yes, we can keep it. So let us draw it with the uh, continuous thin line, and this is what is the axis. Okay. This is the initial data. Have you understood this?
Yes, sir. Yes, anyone has doubt in it? No. Okay. So this is what person A has drawn. Now again person B can draw it differently. So how he can draw? He can draw it like this. Say for example, or rather in the problem statement only they can give like this. See how this problem can be varied, or problem statement can be varied. Okay. Draw the development of an lateral surface of a square prism having base as 30 mm and axis height as 70 mm. Okay, this is the general problem statement. But apart from that, what they can add, one of its base is parallel to VP. ठीक है, तो one of its base parallel to VP means what? If we draw the एक्स वाई लाइन, ठीक है, ऊपर क्या होता है वीपी एंड नीचे क्या होता है एचपी, तो वन ऑफ द लाइन, सो दिस इज द बेस लाइन विच इज पैरेलल टू वीपी. ठीक है, इन अनदर प्रॉब्लम स्टेटमेंट व्हाट दे कैन ऐड the square prism or the base of the square prism is uh, at equally inclined, or the base of the square prism is equally inclined to the VP. Equally inclined to the VP means what? These two lines are at an 45-degree to the VP. So how we can solve that particular problem? That is what we will discuss now. But have you understood the problem statement? Yes, sir. Okay. So we will have to rotate this. Say from here and by angle 45. So it will be like this. Equidistance means what? If we measure this particular angle, so it will be 45. And if we measure this particular angle, so again it is 45. So person B can draw it in this way, isn't it? So for this, what change will be there? So change will be, just a minute. Again offset of 70 mm. Okay, and then we can trim this. This is unwanted, isn't it? Okay. And what is this? This is our center line, isn't it? But what is happening when we are observing from this side now? This rectangular say surface can be seen, isn't it? And this rectangular surface also can be seen. So this will be a continuous line, isn't it? And after that we are going to have the center line. So over here like this, or rather this is what is the center line, isn't it? Like this, and over here it will be like this. So depending upon persons, they can draw it this way or this way. So have you understood the difference? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ गया ना पक्का सबको? गुड. तो अब इसका डेवलपमेंट कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग? बहुत ही ज्यादा सिंपल है. एक पेरीमीटर की लाइन ले लो, ठीक है, या फिर एक लाइन इसको पैरेलल, ठीक है, और ऐसे ही आगे कितने बार? 30 का ऑफसेट लेके 4 बार, ठीक है, बिकॉज दिस इज व्हाट इज द स्क्वायर.
Done. We are done. This is what is the perimeter and this is what is the single side. We are done with it. ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. ठीक है. अब इसका वाला भी कैसे रहेगा? सेम ऐसे ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं. सेम सॉल्यूशन इज सेम. सिर्फ प्रॉब्लम स्टेटमेंट अलग होने से यहाँ पर ये इनिशियल पोजीशन चेंज हो गई है. यस, एनी डाउट? पूछो. अच्छा, कुछ डाउट नहीं है. ठीक है. डन. हैव यू अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. ओके. तो Yes, sir. सिमिलरली अभी देखो, अगर मैं यहाँ पर पेंटागन निकालूं तो क्या होगा? यहाँ पे चेंज क्या होगा? 5 हो जाएंगे. 5. एग्जैक्टली. ये जो नंबर ऑफ थिंग्स है ये 5 आ जाएंगे. रेक्टेंगुलर सरफेस 5 आ जाएंगे. इफ आई ड्रॉ हेक्सागन ओवर हियर, ये कितने रहेंगे? 6. 6. बराबर. सो यही चेंज है. और सिर्फ आपको ख्याल कहाँ पे रखना है? आपको इन दोनों में ख्याल रखना है कि आप ये वाला पोजीशन कैसे ड्रॉ कर रहे हो, उसके हिसाब से फिर ये वाला पोजीशन रहेगा. ओके. तो लेट अस कंप्लीट टुडे ऑल दी प्रिज्म्स फर्स्ट. ठीक है. तो अभी हम लोग क्या करेंगे? अरे अभी हम लोग क्या करते हैं, और ये प्रिज्म खत्म कर देते हैं. देन वी विल मूव टू दी पिरामिड्स. ये स्क्वायर है तो इसको अभी हम लोग पेंटागन करते हैं. ठीक है. नाउ हाउ टू ड्रॉ द पेंटागन. पता है सबको पेंटागन कैसे ड्रॉ करते हैं? अरे यस और नो? No, sir. No, sir. ओके, वेरी गुड. Yes, sir. सी. सो बेस कितना है? 30 mm. तो 30 mm की एक लाइन ड्रॉ कर ली. ठीक है. अब आउट यहाँ से आउटसाइड से 72 या फिर इनसाइड से 108, वैसे आपको लाइन ड्रॉ करनी है. ठीक है. सो द लाइन, अब ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है इसमें. देखते हैं. लाइन एट एन एंगल ऑफ 72. ये यहाँ पे दिक्कत होता है. लाइन, if we are starting it from over here, line of 30 at the rate of 30 है. 30 and less than 72. ये इसका सिंटैक्स अलग है. कुछ तो गड़बड़ है. सिंटैक्स में भूल गया, उसका सिंटैक्स क्या है. चलो कोई दिक्कत नहीं. सी, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अर्थो ऑफ कर रहा हूँ. ठीक है. अब देखो, ये जो लाइन है यहाँ पे मुझे 72 डिग्रीज पे ड्रॉ करनी है. बट अगर ओ स्नैप ऑन है क्या? ओ स्नैप तो ऑन है. ठीक है. तो यहाँ पे एंगल नहीं नज़र आ रहा है. जस्ट अ मिनट. तो ये वाला ऑप्शन भी गया और तो ऑन है. 30 लेस देन 72. कुछ तो गड़बड़ है. Enter it of 730 less than 72. Let us go for the help. बहुत दिनों के बाद ये एंगल वाला मैं कर रहा हूँ ट्राई. अच्छा, एक और टूल है, वहाँ से हम लोग कर सकते हैं. जस्ट मिनट. एक और टूल है मेरे पास जिससे आपको दिखा सकूँ कि पेंटागन हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं. जस्ट अ मिनट, गिव मी मोमेंट. बेसिकली ऑटोकैड में पेंटागन ड्रॉ करना बहुत सिंपल है. ठीक है. बट आपको समझाना है कि
इनिशियली कैसे स्टार्ट करते हैं? ओके, कैन यू सी दिस? Yes, sir. ओके, Yes, sir. एक्चुअली ये सॉफ्टवेयर अलग सॉफ्टवेयर है, बट इसमें भी मैं ट्राई कर रहा था, बट उतना स्पीड से नहीं हो रहा है जितना एक्सपेक्टेड है, तो इसीलिए फिर मैंने इसको छोड़ दिया। मतलब टाइम वेस्ट हो रहा था उसमें, बट आपको इनिशियल जो मुझे दिखाना है उसके लिए सफिशिएंट है। ओके, ठीक है। तो इनिशियली क्या करना है हमें, एक 30 वाली लाइन ड्रॉ करनी है। सो व्हाट वी डिड, एक 30 की लाइन यहाँ से हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो 30 की लाइन ड्रॉ कर लिया हमने। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, एक कंपास यहाँ पर रख दिया, ठीक है, बराबर यहाँ पे रखना है एग्जिट पॉइंट के ऊपर। इफ यू आर काउंटिंग फ्रॉम द इनसाइड, ठीक है, ये इनसाइड हो गया, ये आउटसाइड हो गया। अगर आउटसाइड से हम लोग काउंट कर रहे हैं तो 72, ठीक है, और अगर इनसाइड से काउंट कर रहे हैं तो 108। तो मैं आउटसाइड से काउंट कर रहा हूँ, तो 72 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो एक पॉइंट मैंने वहाँ पर मार्क कर लिया, आप देख सकते हो, ठीक है। अब वहाँ पे मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैं इसको रोटेट करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर भी मुझे एंगल मिलता है बेसिकली। ये पॉइंट से लेके, अच्छा 72 कैसे होगा, 78 है। 108 माइनस, जस्ट अ मिनट, 180 माइनस 108, तो 72 बराबर है, 72। ओके, एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है यहाँ से, लाइक दिस, ठीक है। और हाउ शुड बी दी, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ इट, 70, सॉरी 30। सो फ्रॉम हियर लाइन ऑफ 30 mm, ठीक है। सिमिलर थिंग ओवर हियर। तो अभी इसको मैं फिर से यहाँ पर रख देता हूँ। थोड़ा ऊपर है वो, और ऊपर से आउटसाइड से अगेन 72। सो 72 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। ओके, तो वापस से इसको रोटेट करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स हो गए, और अब कितना ड्रॉ करना है हमें, हमें ड्रॉ करना है 30 mm। तो यहाँ से 30, ठीक है, डन। अब इसके बाद क्या करना है, प्रोट्रैक्टर लेना है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, इसमें क्या डिस्टेंस लेना है आपने, 30 mm का। देन ये जो पॉइंट है यहाँ पर रख दिया, मेटल वाला पॉइंट, और इसको थोड़ा फिर ऐसे घुमा दिया। ओके, देन ये वाला पॉइंट यहाँ पे रख दिया, अरे थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, और इसको ऐसे घुमा दिया, डन। जो अनवांटेड है उसको ट्रिम कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब वापस से थोड़ी छोटी वाली स्केल चाहिए, एंड पेन। अब क्या करना है हमें,
इन दोनों में से पास हो ऐसे वाली लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, अरे इधर से नहीं, ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स है। यही दिक्कत है, इसमें बहुत टाइम लगता है। अच्छा चलो मैं ऐसे फ्री हैंड ड्रॉ कर लेता हूँ, ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, अंडरस्टूड? Yes, Yes, sir. sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यस सर। अब देखो ये वाला जो पेंटागन है, ये तो पेंटागन हो गया। हेक्सागन कैसे ड्रॉ करना है पता है? अच्छा नहीं पता, ठीक है। तो हेक्सागन भी कैसे ड्रॉ करते हैं देखते हैं। चलो सेम प्रॉब्लम में अगर हेक्सागन ड्रॉ करना है, ठीक है, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो फॉर हेक्सागन लेट अस कंसिडर कि 30 mm का ये बेस है। ठीक है, तो एक सर्कल ड्रॉ कर लिया आपने, ओके, एंड देन हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए हमें, या फिर 2 पॉइंट चाहिए। इसका जो सेंटर है, अच्छा अभी सेंटर चला गया, एक मिनट, मैं इसको डिलीट करता हूँ। First of all, what we will do, we will draw the center line first. ठीक है, और इसी को फिर बाद में ऊपर से भी अरे क्या हो रहा है, मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर, सो प्लीज बेयर विथ मी। ठीक है, चलो तो ये यहाँ पे सेंटर पॉइंट रख दिया और फिर सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, एंड देन ये पॉइंटर यहाँ पर रखना है। ठीक है, अच्छा अभी मुझे इसको, ओके 10 मिनट बाकी है। ये पॉइंटर यहाँ पे रखना है और यहाँ पे कट होना चाहिए। तो अब ये बहुत ज़्यादा कट करेगा, ऐसे यहाँ पर कट होगा और प्लस ऊपर वाले साइड पे भी कट करना है मुझे, बट इसको ऐसे, अरे यार गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पर रख दिया। सेम कट मैंने ऊपर भी करना है। ठीक है, मतलब ये ऊपर वाला कट और इधर वाला कट। इस कंपास को मैं इधर लेके आया, ठीक है, और ये इधर कट किया, वैसे भी नीचे भी कट किया। मीन्स व्हाट, आपके पास जितना चाहिए उतना रख रहा हूँ, बाकी का डिलीट कर रहा हूँ। ये थोड़ा इसके डिसएडवांटेजेस है सॉफ्टवेयर के, या मुझे पता नहीं, आई एम नॉट अवेयर। ठीक है, तो ये सेंटर लाइन बन गई। अब इन पॉइंट्स में से पास होने वाली लाइन हमें ड्रॉ करनी है। तो ये ऐसी लाइन यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ऐसे, लाइक दिस एंड लाइक दिस। ठीक है, आया समझ में? Yes, sir. वेरी गुड। अब ये पर्सन, सर यस सर वो आर्क जो लिए ना आपने, जी, वो कितने डिस्टेंस के लेने? सेम रेडियस जो बेस साइड दी गई है ना हमें क्वेश्चन में,
तो वो बेस साइड मतलब इस कंपास में हमने वही डिस्टेंस लिया 30 mm। ओके सर। ओके, तो अभी इसमें कुछ डाउट है तो पूछ लो। कुछ डाउट नहीं है, चलो। दिस इज व्हाट इज फॉर पर्सन ए, बट हमारे पास पर्सन बी भी है, ठीक है। वो कुछ अलग ही सोचता है, तो लेट अस थिंक अबाउट हिम। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर फिर से ड्रॉ करते हैं। अच्छा, इसके लिए ना मैं ऐसे फ्री हैंड ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। नाउ हमने क्या किया, सर्कल ड्रॉ किया, ओके। अब समझो कि ये सर्कल है, ठीक है, एज्यूम इट एज एन सर्कल, ओके। अब मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था, ये जो पॉइंटर है कंपास वाला, ये जो पॉइंटर है मैंने इस केस में, ए केस में यहाँ पर रखा था, अब बी केस में यहाँ पर रख रहा हूँ, ठीक है। एंड देन मैं कट कर रहा हूँ ऐसे यहाँ पर और ऐसे यहाँ पर, उसके, अरे यार, उसके बाद मैंने वापस से ये पॉइंट यहाँ पर रखा और इधर कट किया और इधर कट किया, ठीक है। अब ये करने से क्या होता है वो देखो, दीज आर अवर साइड्स, ठीक है। सो दिस इज फॉर पर्सन बी। तो इन दोनों से चेंज क्या होगा, दो चीजें हैं। एक, तो अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कुछ भी दिया नहीं है उनकी पोजीशन के बारे में, देन हम दोनों ड्रॉ कर सकते हैं। बट अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्लियरली डिफाइन किया है वन ऑफ द बेस इज पैरेलल टू वीपी, ओके, देन ए वाला केस रहेगा। अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बताया गया है वन ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू वीपी, तो ये वाला केस आएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. गुड। तो अभी ये ऑटो कैड दिख रहा है आपको? यस सर। Yes. ठीक है। अब देखो ऑटो कैड इतना आसान क्यों है, फिर व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर में हम लोग पेंटागन इमीडिएटली ड्रॉ कर सकते हैं। एंटर द नंबर ऑफ साइड्स 5, सेंटर ऑफ द पॉलीगॉन यहाँ पर सेंटर ड्रॉ किया, इंस्क्राइब्ड, डन। एंड व्हाट इज द बेस 30, ये 30 वाला बेस मैंने ड्रॉ कर लिया, फिनिश्ड। कितना सिंपल है देखो, मतलब जो हमने यहाँ पर किया उससे कितना बेटर और इमीडिएटली हो गया ये, ओके। तो अभी हमें क्या करना है, इसका डेवलपमेंट ड्रॉ करना है, ठीक है। सो व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसीजर, नेक्स्ट प्रोसीजर इज एक्सेस, क्योंकि एक्सेस साइड दी गई है ना, तो एक्सेस उसका चाहिए हमें। अब इफ वी गेट इट्स, अच्छा ये वाला डिस्टेंस नहीं, बेस का अगर डायमेंशन चाहिए, अच्छा 35 हो गया मेरे को सर, दूसरा वाला लेना, 30 वाला लेना है ना हमें। 5, 30, अरे इसमें 30 वाला नहीं आ रहा है क्या? अच्छा ये सर्कल वाला है, ओके 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 ओके, आई गॉट इट। ये जो है ना ये सर्कल वाला पेंटागन है, मतलब ये गलत हो जाता है हमेशा। बट ठीक है चलो, आपको समझ में आ गया है कि कैसे ड्रॉ करना है। प्रोसीजर यही है, ठीक है, आपके लिए ड्रॉ करने के लिए। बट अभी फिलहाल मैं डायमेंशन चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। नाउ पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी, अभी इसमें अलग अलग केसेस है। तो मैंने ये फर्स्ट केस, सेकंड केस, सेकंड केस, थर्ड केस, ठीक है। तो फर्स्ट केस तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड केस में कोई बंदा क्या कर सकता है,
ऐसे ड्रॉ कर सकता है, isn't it? तो किसी पर्सन बी ने ऐसे ड्रॉ किया, पर्सन सी ने अलग तरीके से ड्रॉ किया, ऐसे बेस को। वी आर टॉकिंग अबाउट बेस ओनली, अभी तक हम लोग बेस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी, पर्सन डी, और कुछ पॉसिबिलिटी अगर है तो ठीक है, चलो जाने दो, वो पर्सन ई आप सोच लो, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। तो अगर ये हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं तो उसके मुताबिक ऊपर वाला जो व्यू है वो चेंज होगा। तो वो कैसे चेंज होगा, दैट वी विल सी, ठीक है। सो यहाँ से अगर हमें लाइन ड्रॉ करनी है, विच आर द प्रोजेक्शन लाइन्स, और रादर फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें इसका एक्सेस ड्रॉ करना है, ठीक है। तो अच्छा, ये 1 ही मिनट बाकी है इस मीटिंग को। हम क्या करते हैं, मीटिंग फिर से ज्वाइन करते हैं, ये मीटिंग में एंड कर रहा हूँ, आप फिर से मीटिंग ज्वाइन करो, ओके।